ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم کی اہم ملاقاتیں. IMF کے صدر، چیئرمین ورلڈ اکنامک فورم اور یورپی پارلیمنٹ کے صدر ڈیوڈ ساسولی سے ملاقات میں اہم معاملات پر بات چیت. عمران خان سے ٹیلی نار، سیمنز کمپنی، گلوبل ویکسین الائنس اور فیس بک کے حکام کی بھی ملاقاتیں. امریکی صدر کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے وزیراعظم سے غیر رسمی ملاقات کی. جاپانی کمپنی ماروبینی کارپوریشن کے چیئرمین کی بھی غیر رسمی ملاقات. آٹے کے نرخ کم نہ ہوئے. سندھ میں فائن آٹا 65 اور چکی کا آٹا 70 روپے فی کلو میں فروخت. لاہور میں چکی مالکان کی مقدمات کے خلاف ہڑتال. بلوچستان میں گندم نہ ملنے پر فلور ملز کی آٹا سپلائی بند کرنے کی. وزیر اعظم عمران خان نے گندم بحران پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی کو 15 دن میں بحران کی وجوہات تلاش کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کا ٹاسک. آٹے کے بعد چینی بھی مہنگی. کراچی میں چینی کی قیمت 80 روپے کلو ہو گئی. شہر میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو چینی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا. ادھر اسلام آباد میں بھی چینی 5.8 روپے اضافے کے بعد 80 روپے فی کلو ہو گئی. فیصل آباد میں چینی کی قیمت 65 سے بڑھ کر 70 روپے کلو ہو گئی. پی ٹی آئی رہنما دیار غیر میں بھی اپوزیشن لیڈر پر برس پڑے. شفقت محمود کا کہنا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف الزامات پر تحقیقات کر رہا ہے. برطانوی صحافی ڈیوڈ روز ہر 10 دن بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے قانونی کارروائی نہیں کی. ان کے خیال میں شہباز شریف ڈیوڈ روز کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے. وہ DFID کے پروگرام سے مطمئن ہے. لندن میں گفتگو. انعام غنی کو IG سندھ پولیس مقرر کیے جانے کا قوی امکان. گریڈ 21 کے افسر انعام غنی اس وقت پنجاب میں ایڈیشنل IG تعینات ہیں. ڈائریکٹر FIA بھی رہ چکے ہیں. سندھ حکومت نے ثناء اللہ عباسی کے نام پر مشتمل سمری بھی وفاق کو بھجوا دی. غلام قادر تھیبو، کامران فضل اور مشتاق مہر کے نام پہلے ہی بھیجے گئے تھے. کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈیو اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان رابطہ. T20 سیریز پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹاکرا کل ہوگا. دونوں ٹیمیں آج نیٹ پریکٹس کریں گی. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں سیریز کے لیے انتظامات فائنل. لوگوں کی رونمائی بھی ہوگی. میچوں کے موقع پر ٹریفک ایڈوائزری پلان بھی جاری. میوزک لور امریکی شہر سینٹ پال کے ایک شخص نے جب اپنی بطخ کو ڈھول پر کھڑا کیا تو اس نے اپنے پاؤں مار مار کر ایسے ڈھول بجایا کہ ہر کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. وزیر اعظم عمران خان کی ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں جاری ہیں. وزیر اعظم سے IMF اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدور، اردن کے وزیر اعظم، ایگزیکٹو چیئرمین ورلڈ اکنامک فورم اور یورپی پارلیمنٹ کے صدر ڈیوڈ ساسولی نے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ، یوٹیوب، ٹیلی نار اور سیمنز کمپنی کے CEOs نے بھی ملاقاتیں کی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم عمران خان سے IMF اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدور نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں مفید رہیں. امید ہے ADB کے نئے صدر کے دور میں تعاون مزید مستحکم ہوگا. صدر ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ 5 دہائیوں سے تعاون جاری ہے. جلد پاکستان کا دورہ کر کے نئے منصوبوں کا جائزہ لوں گا. وزیر اعظم سے ایگزیکٹو چیئرمین ورلڈ اکنامک فورم نے ملاقات کی. عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم کے 50 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی. کہا ورلڈ اکنامک فورم غربت کے خاتمے اور تعلیم میں پاکستان کا پارٹنر بنے. کلین گرین پاکستان پروگرام کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی یورپی پارلیمنٹ کے صدر ڈیوڈ ساسولی سے ہونے والی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مشیر
वज़ीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म से यूट्यूब की CEO ने भी मुलाकात की। पाकिस्तानी सियाहत के फरोग और सरमायाकारी के लिए डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से सीमेंस कंपनी के CEO की भी मुलाकात, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और अफरादी कुव्वत की तरबियत से मुतालिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। CEO ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पोलियो खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह की। वज़ीर आज़म इमरान खान से उर्दन के वज़ीर आज़म और अमरीकी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने भी साइड लाइन पर मुलाकातें की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी इवेंका ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान से फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और टेलीनॉर के चेयरपर्सन और CEO ने भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने टेलीनॉर की पाकिस्तान में 2005 से $3.5 अरब की सरमायाकारी करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गुड गवर्नेंस और गुर्बत के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 2020 सीपैक मंसूबों के जरिए दही मईशत की मजबूती का साल करार दिया गया है। हुकूमती डेडलाइन के बाद 5 सूबाई इदारों के जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए हैं। सीपैक मंसूबों के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबों को सूबाई सीपैक वर्किंग ग्रुप में मंजूरी दी जाएगी। फंड्स के लिए समरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को अरसाल की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे एक हमारे नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम इकबाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने पंजाब से सीपैक मंसूबों की आगाज़ के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है और करार दिया है कि 2020 सीपैक मंसूबों के शुरू करने का साल है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसकी सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत ने की। आरफ फरमा बलोच की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 5 महकमों के सेक्रेटरीज और नुमाइंदगान के अलावा PND के हुकाम भी शरीक हुए और उन्होंने सीपैक मंसूबों के हवाले से सिफारिशें तैयार की। ज़राए का बताना ये है कि हुकूमत पंजाब की जानब से जो सिफारिशें तैयार की गई हैं उसमें बाज़ नकाइस सामने आए और बाज़ हवालों से उसमें तरतीब ठीक देने के लिए भी कहा गया। ज़राए बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से हदायत की गई है कि सीपैक मंसूबे जो शुरू होने हैं उनका नाम, उनके मुकम्मल होने की तारीख और मतवक्का तौर पर उन पर उठने वाले अखराजात समेत दीगर तफसीलात दी जाएँ। इस सिलसिले में जो इजलास हुआ उसमें इब्तदाई तौर पर सिफारिशें तैयार की गई और जो इब्तदाई तौर पर सुकम सामने हैं उनको दूर करने की हिदायत भी जारी की है। हमारे ज़राए का दावा है कि ये तमाम सिफारिशात PND बोर्ड को पेश की जाएंगी, जहाँ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इसका जायज़ा लिया जाएगा और हतमी रिपोर्ट वफाक को भिजवाई जाएगी। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने पंजाब को 28 फरवरी की डेडलाइन दी है। उस डेडलाइन से कबल पंजाब ने सूबा में शुरू किए जाने वाले सीपैक मंसूबों की रिपोर्ट वफाक को भिजवानी है, जिसके बाद मामला मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस बात पर मुतफिक है कि 2020 सनतों के जाल बिछाने और रोज़गार की फराहमी का साल है। जी, मुल्क भर की तरह आटे का बहरान मुजफ्फरगढ़ भी पहुंच गया, जहां आटे के रेट में इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तनूर मालिकान ने भी रोटी के रेट में इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक शेख से। फारूक शेख, बताइएगा मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल कैसी है? जी, मुल्क भर की तरह जारी आटे के बहरान में मुजफ्फरगढ़ में भी आटे के रेट्स के अंदर इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये आटे के रेट में इजाफे के साथ ही जो यहाँ पर तंदूर मालकान है उन्होंने भी रोटी के रेट्स के अंदर इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी तरफ ये जो आटे के रेट्स में इजाफा हुआ है, वहीं पर ज़िला इंतज़ामिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 13 से ज़्यादा पॉइंट्स कायम किए हैं, जो शहरी हदूद में पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन ये पॉइंट्स की तादाद कम होने की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जो ज़िला इंतज़ामिया ने ये इक़दाम किए हैं उसको देहाती इलाकों के अंदर भी फैलाया जाए, ताकि लोगों को बर वक्त आटे की फराहमी और कम रेट के ऊपर आटा दस्तयाब हो सके। जी शुक्रिया फारूक शेख, हमें मुजफ्फरगढ़ से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जेहलम शहर और गिरदोनवा में आटा और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों ने सरकारी रेट्स को नज़रअंदाज करके मनपसंद रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। मजीद जानेंगे जेहलम से अपने नुमाइंदे रियाज गोंदल से।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह झेलम और इसके गिरदोनवा में भी जो महंगाई का जिंद है वो बेकाबू हो चुका है। खास कर आटा चीनी का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। जो सरकारी रेट है वो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है, लेकिन असल मार्केट में जो दुकानदार हैं वो कहीं गुना जो महंगी चीनी और आटा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम आटे की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है वो 808 रुपये 20 किलो का जो थैला है आटे का उसका रेट दिया हुआ है, लेकिन ओपन मार्केट में जो फी किलो रेट है वो 65 से 70 रुपये जो है वो फी किलो आटा फरोख्त हो रहा है। अगर हम चीनी की बात करें तो जो सरकारी रेट है वो 70 रुपये फी किलो है, लेकिन जो दुकानदार है वो 80 से 90 रुपये फी किलो जो चीनी है वो फरोख्त कर रहे हैं, जिससे गरीब लोग जो है वो सख्त मुतासर हो रहे हैं। गरीब लोगों ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस महंगाई का नोटिस लेकर फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करें। जी